Hello everyone, welcome to JV's IS. I am Sakshi. So you know that Union Public Service Commission UPSC conducts the civil services examination every year, and this is considered as one of the toughest examination all over the world, yet it is the most desirable exam. Everybody eyes on this, and if you want to be an IS officer, if you want to fulfill that dream, you should know the examination pattern. So in this session, we are going to discuss and I am going to remove all your queries related to the UPSC Civil Services Examination, that what all are the stages in the examination, what is the examination pattern, what is the eligibility criteria, marking scheme, and what about the notification, how would the notification come, and what is the correct time. So everything will be discussed in this session. So stay tuned till the end. Before starting this session, I would like to introduce you to the JV's platform. So JVs have so many courses. If you want to prepare for UPSC CSE, so you can join. There are several courses at this platform. You can join the Super 50 program if you have time, if you're a undergraduate and if you are working professional, and if you have some time constraint, you can join this program, specially designed for the candidates and specially designed for 2 years. You can join the JV's mains guidance program also, and there is one special program of the JV's mentorship program. Personalized mentorship is given to each and every candidate under this particular program. For the GS integrated courses, you can join the GS integrated courses program for the 2021, and we also have the individual module courses, wherein which you can join the individual subject, the classes for the individual subject. Suppose if you want to prepare for Indian polity, social issues, current affairs, ऐसे करके ये different subjects के लिए भी आप जो है courses को enroll कर सकते हैं. Do not forget to download the JV's app. It is a very useful app if you want to prepare for UPSC CSE examination. There you'll get so many articles related to the current affairs. You'll get DNA, current affairs updates, and mind maps. There are so many things which are useful for your examination. So do not forget to download the JV's app. Now we have a big news for you. The referral bonus system. So JVs are now introducing a very good and very you can say a very important referral bonus program, wherein which if you are already connected with the JV's platform for so many years, if you're already enrolled as a student in the JV's platform, so simply you can refer any one of your known person. आप किसी को भी refer कर सकते हैं, be it your friend or colleague, your cousin, anybody. अगर वो courses को लेने में if they have some constraint, तो आप उनको ये courses refer कर सकते हैं. And every time you refer a student to us, earn 10% of the referred students fee as a referred bonus, and whatever the fee paid by the referred students, you will get the 10% of that fee as a referred bonus. 1 point is equals to 1 rupee. So and these points you can redeem them later. आप कैश के फॉर्म में भी रिडीम कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनदर कोर्स, उस कोर्स के लिए भी आप ये पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं. उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिट्स हैं. वंस यू रिडीम एज अ कोर्स, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी यूजफुल फॉर द अपकमिंग कैंडिडेट्स नाउ. सो लास्ट एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि JVs के आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. इनके कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के साथ कि आपकी एलिजिबिलिटी एटलीस्ट होनी चाहिए. यू शुड बी एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन. उसके बाद ही आप जो है, इफ यू आर एलिजिबल देन ओनली यू विल बी watching this video, otherwise there is no need. So eligibility, so you just need to, सबसे पहले हम बात करते हैं nationality के बारे में. So of course need to be the Indian citizen, but if you want to be IAS, IPS, IFS, for these 3 positions the candidate must be the citizen of India, and for the other post he can be citizen of Nepal, Bhutan, Tibetan refugee who came over India before the 1st January 1962 with the purpose and intention to permanently settle in India, and a person of the Indian origin who migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam, with the intention of permanently settling in India. But you will have to prove this to the authorities
एंड विच मीन्स दैट आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाना पड़ेगा. अदरवाइज इफ यू आर सिंपली अ सिटीजन ऑफ इंडिया you are very well eligible. Now coming to the second eligibility, the age limit. So बहुत ही जनरल टर्म्स में बता दूं, for the general candidates it is 21 to 32. यानी कि minimum you should be 21 and maximum 32. 21 to 32 की अगर आप एज ब्रैकेट में आते हैं then you are very well eligible for this examination, and this is for the general category. For others, like there are some categories for which the age relaxation is given. So इन कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं हम. For SC and STs आपको 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन दिया है. For the other backward classes, OBCs 3 years of age relaxation is given beyond the age of 32. Defense service personnel, disabled in operations during the hostilities with the foreign countries or in a disturbed area or realized of the consequent thereof. तो डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए आपको 3 साल का जो है एलिजिबिलिटी है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है. एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग द कमीशन ऑफिसर इन सालों के लिए 5 ईयर का है. एंड फॉर द PWDs इट इज 10 years ऑफ रिलैक्सेशन. यानी कि अभी फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, ओके, जनरल कैंडिडेट्स जो इन ब्रैकेट्स में नहीं आते हैं तो उनके लिए तो बेसिक है द मिनिमम इज 21 एंड मैक्सिमम इज 32. But for the later these categories, the age relaxation is given. Now, coming to the next one is the minimum educational qualification. So यहाँ पर आपके minimum educational qualification if you see, so simply you need to have a degree. डिग्री आप किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट फंडेड या फिर किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर से अफिलिएटेड हो. And if the institution has been established with an act of parliament or declared to be deemed university under section 3 of the UGC Act 1956 और या फिर equivalent qualification provide करता हो. You just in a simpler word you need to be a graduate. Okay, मैं आपको बहुत ही simpler term में बता रही हूँ. The degree should have a degree. Now इसके अलावा अ कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, सपोज अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप अपना सपोज बीए कर रहे हो एंड इफ यू आर इन द 3rd ईयर ऑफ द बीए, आपका एग्जाम यूजुअली मई जून में हो जाता है. बट जब मई जून में एग्जाम होता है तब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के क्या रिजल्ट नहीं आए हुए होते हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो रहे होते हैं. Then also you can give this examination, but later on आपको second process में मेंस के टाइम पर आपको proof देना होगा that you have qualified the said examination, the final year. Now the candidates having the professional and technical qualification recognized by the government equivalent to the professional and technical degrees आप भी इस के लिए eligible हैं. And the doctors, okay, the students who have passed the final year MBBS का डिग्री पास कर लिया बट आपने क्या नहीं किया है, इंटर्नशिप नहीं किया है, then also you can apply and you can very well sit in the examination. You are eligible for the IAS examination. दो आपको मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पर यहाँ पर भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा. Okay, now talking about the number of attempts, this is very very important. UPSC examination में attempts matters a lot. Although आप प्रे करिए और ऐसे ड्रीम करिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकल जाए, बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो दैट इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड. सो some people can take time, that is also fine. So number of attempts is also mentioned. So for the categories wise यहाँ पे define है, journal and economically weak section के लिए आपको 6 attempt दिए हुए हैं. There are total 6 attempt for all the journal category people. OBCs के लिए you'll get the 9 attempt, but you need to keep this in mind. You have the age restriction भी है, right? तो ये age restrictions को भी आपको दिमाग में लेके चलना है. अगर आपने एज अपने कैटेगरी के एज बार के ऊपर अगर आपके अटेम्प्ट्स बचे हैं, दैट वोंट बी काउंटेड. ठीक है, तो एज बार के अंदर ही रह के आपको सारे अटेम्प्ट्स देने हैं. सो फॉर ओबीसीज इट इज 9 attempts. 9 attempts आपको अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, so there is no bar until the age limit. This is the unlimited range. यानी कि if you belong to scheduled caste and scheduled tribe, आपको जो है
अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिले हुए हैं यूपीएससी की तरफ से, जब तक कि आपकी एज जो लिमिटेशंस है वो खत्म नहीं हो जाती. नाउ टॉकिंग अबाउट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, फॉर देम unlimited again. For them also there is no bar for of attempts till the age limit, जब तक कि वो अपने जो लास्ट एज लिमिट है तब तक जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते, तब तक के लिए you would have the number of attempts. Now guys, talking about the dream, now let's talk about the examination pattern. अब हम पूरे एग्जाम की स्कीम समझेंगे. हमने एलिजिबिलिटी जान ली. If you are eligible, if you hold a degree and you fulfill all the eligibility criteria which I mentioned just now, then you can easily prepare yourself to prepare for the examination. अपने आप को तैयार कर सकते हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए. तो अब जानेंगे हम एग्जाम की स्क्रीन और हम जानेंगे about your dream. So when we talk about the IAS examination, which is like popularly known as IAS examination, officially UPSC Civil Services examination, it comprises of the 2 successive stages. अब आप मुझे बोलोगे कि आप हमें गलत बता रहे हो. There are 3 stages, but yeah, when we talk in the official terms, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा. So there it is written there are 2 stages of examination. The one is the preliminary examination, which is popularly known as pre, and the second one is the mains examination, which consists of the 2 papers, written and interview. So in a journal term आपको समझा देती हूँ. यहाँ पे होगा आपका प्री, फिर होगा आपका मेंस और फिर होगा इंटरव्यू. यही हम जानते हैं. ओके, सो यहां पर ये क्या है, प्री इज द पेपर 1. प्री इज कंसिडर्ड एज वन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, वन स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड दीज 2 दे आर बेसिकली टुगेदर नोन एज मेंस, जिसमें इस वाले पेपर को जहां पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को सॉल्व करना होता है, उसको बोला जाता है रिटन, and the other one, this part consists of interview. So both of them known as the mains. So यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपसे बोला that it comprises of the 2 successive stages, pre and mains. When we talk about prelims examination, prelims is just you can say यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके candidates को check किया जाता है. Final merit में final ranking for the selection of IAS, IPS and various posts आपका सिर्फ और सिर्फ जो मेंस एग्जामिनेशन है, विच इज द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे, नॉट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग, यू कैन कंसिडर कि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है. नाउ टॉकिंग अबाउट बोथ द पेपर, आप पहले प्री देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके लिए. सपोज एक क्वेश्चन आएगा सो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी दिए होंगे. आपको उनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन आपको जो भी लगता है अपनी OMR शीट में मार्क करना है, ड्राफ्टिंग करना होता है. ओके, सो दिस इज हाउ योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल हैपन. ये एग्जामिनेशन में अगर आप पास कर जाते हैं, देन द कैंडिडेट will be referred for the mains examination. ठीक है, इस एग्जामिनेशन it is a selection process for the mains examination. Mains यानी आपका interview and written examination. Here these are for the selection of a candidate for various services and posts noted that we just discussed, the IAS, IPS, IFS, IOFS, IRS and other posts which you are aiming. Now let's talk in detail, but before that I would like to tell you one more very important information about the notification. So notification जो होता है UPSC usually पहले notification जारी करता है, notification निकालता है, उसमें आपके पूरा जो मैं आपको स्कीम समझा रही हूँ बेसिकली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विथ इन डिटेल, सारी की सारी हाउ टू अप्लाई फॉर, वेयर टू अप्लाई, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटीज, जो सारी की सारी चीजें हैं वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाती हैं. अभी नोटिफिकेशन आपका इन यूजुअल डेज कब आता है? योर नोटिफिकेशन इज इशूड इन द मंथ ऑफ फरवरी एवरी ईयर यूजुअली, एंड आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा इट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मई और जून. यहाँ पे आपको हमेशा यूपीएससी इस पर्टिकुलर मंथ में एग्जाम कंडक्ट करवा ही देता है. Also, there are chances जैसे कि the world has faced in the year 2020 the COVID-19. तो हमारे COVID-19 की वजह से although ये पेपर जो है वो postpone हो गया था, but I must tell you that UPSC is the only examination which only you can say organization which conducts the examination
ऑन टाइम इन इंडिया। तो आपको यूपीएससी हमेशा ऑन टाइम एग्जामिनेशन देगा, यानी कि यूपीएससी अपना जो है कैलेंडर भी जारी करता है। उस कैलेंडर में जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने होते हैं यूपीएससी को, ना ही सिर्फ आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, देयर आर सो मेनी अदर एग्जामिनेशन सच एज द एनडीए, सीडीएस, डिफेंस के कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, फोर्सेस के एग्जामिनेशन होते हैं, सो मेनी एग्जामिनेशन विच आर कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड उसके लिए यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करता है। उस कैलेंडर में वो प्रोस्पेक्टिव डेट्स, सारी टेंटेटिव डेट्स आपकी पहले से ही जारी कर देता है और बता देता है कि व्हेन द प्रीलिम्स विल हैपन, इंटरव्यू कब होगा, मेंस के एग्जामिनेशंस कब होंगे, सो दैट उसके ही जो एग्जामिनेशंस वो क्लैश ना हो। बट नाउ यहां पर दीज आर द प्रोस्पेक्टिव डेट्स, यानी कि मई जून में आपका प्रीलिम्स तो हो ही जाता है, एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी आपका नोटिफिकेशन हमेशा आ ही जाता है। तो यू हैव टू बी अटेंटिव इन द मंथ ऑफ फेब कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उससे टाइमली फिल कर पाए। Okay, so we'll talk about one by one. Civil Services Preliminary Examination, the Stage 1. ये प्री का एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। There will be 4 choices for each question. We'll have to choose the correct one. Okay. Also, one of the main important point about this examination is the negative marking. Okay, this examination also have the negative marking of 1/3. So यहाँ पे आपको negative marking भी देखने मिलेगी। Now let's talk about it is an objective paper type in nature and consists of the 2 papers. अभी यानी कि प्री में आपके होते हैं 2 papers, paper number 1 and paper number 2, GS paper 1 and GS paper 2. GS paper 2 is of the CSAT. Okay. अभी CSAT में आपके जो है एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। Now I'll talk one by one. The marks of the candidates who qualify in the preliminary exam, they are not taken into account for the determination the final merit. यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट होगा IAS, IPS के लिए जो लिस्ट बनेगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस और आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स है उन दोनों को काउंट करके उस लिस्ट में रैंकिंग बनेगी। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को मेरिट में नहीं लिया जाता है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर। बट यहाँ पर भी यहाँ पे आपके 2 कंपोनेंट्स हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है पेपर नेम, टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड नेचर ऑफ द पेपर। जीएस पेपर 1 इसका सिलेबस मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूंगी। दिस इज बेसिकली यहाँ पे आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जीएस पेपर 1 में मिलेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मिलेंगे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और टोटल मार्क्स है 200, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ओके, एंड ये जो पेपर है इट इज कंसिडर्ड फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम मेरिट, यानी कि इससे ही आपके जो बनेंगी रैंकिंग और उस रैंकिंग के बेसिस पे आपका डिसाइड करेगा कमीशन, कट ऑफ डिसाइड करेगा कमीशन, और फिर आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पेपर नंबर 1। Why not paper number 2? Let's discuss. So GS paper 2 is of the CSAT, 2 घंटे का होता है। यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। ओके, एंड यहाँ पे आपको मार्क्स अलॉटेड है 200 एंड क्वालिफाइंग है इसका पेपर, यानी कि इस पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 33% ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू दिस पेपर यू नीड टू ब्रिंग। 33 नंबर लाके आपको इस पेपर को पास करना है। ये पेपर पास हो जाएगा तो इस पेपर के बाद आपका प्री पेपर 1 चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको जो है कट ऑफ में आपको जो है रैंकिंग मिलेगी और उसके बेसिस पे आपको जो है क्वालिफाई करोगे। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, दैट यू नीड टू टारगेट, एंड यहाँ पे आपको एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। बट याद रहे, लोग इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, पेपर नंबर 2 पे ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर आपने पेपर नंबर 2 नहीं निकाला तो आपका पेपर नंबर 1 चेक ही नहीं होगा, आपका पेपर नंबर 1 में क्वालिफिकेशन से नहीं हो पाएगा। पेपर नंबर 2 को कैसे प्रिपेयर करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, हाउ यू शुड अप्रोच द सीसैट, आई हैव टेकन अ कंप्लीट सेशन ऑन दैट। आपको आई बटन में मिल जाएगा कि आपको सीसेट वाला जो सेशन जो मैंने किया है वो सीसेट को कैसे अप्रोच करना है, आई बटन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे प्रीलिम्स की। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नाउ
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 का सिलेबस एक बार आप अच्छे से देख लीजिए. जीएस पेपर 2 का सिलेबस, मार्किंग स्कीम, व्हाट यू शुड अप्रोच अबाउट द पेपर 2 यानी कि सी सेट, वो मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुकी हूँ. आप वो वीडियो देखिए और आपको पूरा का पूरा सही आइडिया मिल जाएगा. टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 1, सो इसका सिलेबस देख लीजिए. एक बहुत ही ज्यादा आपको ग्लिम्स है. द करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट्स, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. यानी कि आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी सब पढ़ना है. इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एक्सेट्रा. इंडियन पॉलिटी पढ़ना है. इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का होगा आपके सिलेबस में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टी, inclusion, demographics, social sector initiative, etc. And there will be journals issues on the environment, ecology, biodiversity and climate change, and that do not require subject specialization, and journal sciences से आपको questions देखने मिल जाएंगे. Now talking about कि आपको इनको अप्रोच कैसे करना है और कहां से करना है, that is the book list. अभी मैंने आपके लिए बुक लिस्ट पे भी एक सेशन बनाया है. आपको यहाँ पे आई बटन में बुक लिस्ट वाला जो सेशन मिल जाएगा, I'll ask these people to allocate it. यहाँ पे आपको बुक लिस्ट के लिए मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है that what book list you should follow for UPSC preliminary examination. Now ये बात हुई सिलेबस की हमारे. Talking about the civil services mains examination, as I told you, it consists of the written and interview. Written यानी कि हम यूजुअल भाषा में इसको बोलते हैं मेंस, राइट? इसको ही हम लोग मेंस बोला जाता है. तो रिटन होगा आपका एग्जामिनेशन और फिर होगा आपका इंटरव्यू टेस्ट. रिटन में आपको होंगे 9 पेपर्स. ठीक है, यहाँ पे आपको रिटन में 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, यानी कि आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने होंगे. सो ये 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी आपके पास डिवीजन मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको 2 पेपर होंगे जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इनको क्वालिफाई करना होगा. इनको आपको मेरिट में इनको नहीं लिया जाएगा. टॉकिंग अबाउट द 7 अदर पेपर्स, 7 अदर पेपर्स की बात करें तो दीज आर नॉट क्वालिफाइंग. एक्चुअली यहाँ इनके बेसिस पे आपका जो है मेरिट बेस्ड पेपर्स होंगे. ओके, सो द पेपर्स आउट ऑफ विच 2 आर द क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन इन द रिमेनिंग 7 पेपर्स, एंड ये 7 पेपर में आपको जो मार्क्स मिलेंगे और आपके पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे उससे आपका फाइनल मेरिट बनेगा और आपको उसके बेसिस पे रैंक मिलेगी और उसके बेसिस पे आपको अपनी पोस्ट मिलेगी. तो ये बात होगी इजी. ये 2 पेपर किस चीज के पेपर है वो मैं आपको बता देती हूँ. दीज आर द लैंग्वेजेस पेपर. ओके, दीज आर द पेपर ऑफ लैंग्वेजेस. नाउ ये आप देख लीजिए, मैं आपको मेंस का स्कीम बता देती हूँ. सो देयर विल बी पेपर ए एंड पेपर बी. दीज आर द 2 लैंग्वेज पेपर. पेपर ए में आपसे पूछा जाएगा कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे देयर आर सेट ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम विच यू कैन चूज. जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है, ये जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिस पे आपको लैंग्वेजेस की चॉइस मिल जाएगी. नोटिफिकेशन में सारी चीजें होती हैं. सो आपको क्या करना है, उन लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करनी है, एंड दैट इज द कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पेपर, जो लैंग्वेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है. ये जो पेपर होगा इट विल बी ऑफ 3 hours. 3 घंटे का रिटर्न पेपर होगा और मार्क्स इसमें अलॉटेड है 300 मार्क्स. ये है क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके, ये है क्वालिफाइंग इन नेचर. 25% आपको यहाँ पे मार्क्स लेकर आने हैं. टॉकिंग अबाउट पेपर बी. ओके, पेपर बी की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है यहाँ पर. सो आप जैसे अगर हम पेपर ए की बात करें कंपलसरी लैंग्वेज में, जैसे सपोज मैंने हिंदी लिया तो यहाँ पे मेरा एक हिंदी हो जाएगा, बट इंग्लिश इज कंपलसरी. इंग्लिश इज कंपलसरी लैंग्वेज पेपर. सो यहाँ पे ये भी आपको 3 घंटे का पेपर मिलेगा. 300 मार्क्स अलॉटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके, यहाँ पे इन दोनों पेपर में आपको लाने हैं 25% मार्क्स, 25% in each paper, so that only after acquiring this particular percentage of marks in these 2 compulsory papers, the next paper will be checked. Okay, next paper will be evaluated. Talking about the rest of the 7 papers. So paper number 1,
ये होता है आपका ऐसे का पेपर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, 2 ऐसे लिखने होते हैं बेसिकली, और आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, इनमें से आपको चूज करना होता है टॉपिक, उस बेसिस पे आपको लिखने होते हैं एसेज। पेपर नंबर 1 इज ऐसे, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। 250 मार्क्स आपको इस पेपर में लेकर आने हैं। द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू दिस पेपर इज 250 marks. Now this is considered for merit. Please do remember, paper number 1 to 7, these all are very important as these are considered to be for the merit. ऐसे के पेपर के बारे में हमने बात कर लिया। इसके मार्क्स है 250, यानी कि आप इन इजियर टर्म समझ लिए 125 मार्क्स हर एक ऐसे के लिए। पेपर नंबर 2 इज जीएस पेपर 1, ठीक है। अभी यहां से लेकर जीएस 3, 4, 5, यहां पे इस ब्रैकेट में आपको मिलेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। ये चारों के चारों जीएस के पेपर्स हैं। इन पेपर्स में आपको हर एक पेपर में मिलेगा 3 घंटा, 3 hours for completing and finishing that particular paper, and the marks allotted are the same, that is the 250 for each paper. Now talking about the 6th one, यानी कि अब आता है आपका ऑप्शनल। नाउ ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट लेना होता है जिसके ऊपर आपको 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल पेपर की स्कीम, दैट हाउ टू चूज एन ऑप्शनल, ये भी सेशन में ले चुकी हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके देखिएगा। उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन चूज द परफेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि as you know, the number of attempts are less and some people also faces the age constants, तो उसके बीच में हमें अपने attempts ऑप्शनल में ज्यादा खराब नहीं करने होते, हमें अपने attempts को बचा के रखना होता है। इनफैक्ट जल्दी से जल्दी विद इन 1 और 2 अटेम्प्ट आपका एम होना चाहिए कि आपका एग्जाम निकल जाए। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो परफेक्ट चूज करें, ये गेम चेंजर हो सकता है फॉर योर मार्क्स। सो ऑप्शनल के लिए आपके होते हैं 2 पेपर, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। सो इन दोनों के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे फॉर ईच पेपर एंड 250 मार्क्स आर अलॉटेड टू ईच पेपर। नाउ अगर आप ग्रैंड टोटल करो इन सबका, सो यू गेट 750 मार्क्स। ओके, नाउ ये सारे के these all are considered for the merit. Please do remember. Now talking about the second scheme, हम बात कर रहे हैं मेंस की। ये बात हो गई यहां से यहां तक, तो we talked about what? यहां से यहां तक we talked about the written test, है ना, इंटरव्यू के पार्ट 1। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू, वेर इन विच यू गो टू द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड आप जाते हैं वहां पे, आपको जो है पूरा पैनल मिलता है, पैनल में आपके सामने आप बैठते हैं और आपसे पर्सनली जो है फेस टू फेस क्वेश्चंस किए जाते हैं। दे टेस्ट यू वेदर यू आर perfect for the career for the as a bureaucrat or not. Now इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 270 मार्क्स, 275 मार्क्स आपको अलॉटेड है इंटरव्यू के लिए। सो आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा कितना? 2025। नाउ इसके बेसिस पे आपका जो है रैंक डिसाइड की जाएगी, इसके बेसिस पे है जो आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल द स्कीम अबाउट द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। नाउ गाइज, talking about the important points to remember. So as I talked about the paper number A, paper number A में मैंने क्या बात किया कि there are some compulsory Indian language paper जो हर किसी को देने होते हैं, but there is some exceptions as well. अगर आप इनमें से किसी स्टेट से हैं, सपोज अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, मेघालय से है, मिजोरम से है, नागालैंड से है, सिक्किम से है, as well as if you are a candidate with hearing impairment, provided that they have proof that they have been exempted from such second and third languages courses by their concerned board and universities. Now आप जो है आपके लिए exception है यहाँ पर। The Indian language paper covers any of the language including the 8th schedule of the constitution, यानी कि आपके लिए यहाँ पर if you are coming under this particular bracket, ये वाले स्टेट से हैं, if you have this particular hearing impairment thing, तो आप यहाँ पे क्या है, you will be exempted, यानी कि आपके लिए कंपल्सरी नहीं है पेपर नंबर ए को देना। Now talking about the Indian language paper, यहाँ पे it covers any of the languages which are included in the 8th schedule of the constitution, ठीक है, वो आपकी नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है।
तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। नाउ पेपर on essay, journal studies, optional subjects of any of such candidate will be taken cognizance with who attain the 25% of the marks in the Indian language and 25% of the marks in the English and as a minimum qualifying standards of these qualifying paper. तो आपके लिए क्या होगा जो मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो आपके पेपर्स हैं एसए के, जीएस के और ऑप्शनल के तभी कंसिडर किए जाएंगे व्हेन you qualify these papers. The language paper, paper number A and paper number B. Paper number A, the Indian language paper and the English language paper, you will have to acquire at least 25% of the marks in order to qualify these papers. And once you qualify in these papers, they will consider your other papers for the checking, or you can say the evaluation. So this is all about the scheme of the examination, guys. यहां पर हमने सारी स्कीम समझी। नाउ टॉकिंग अबाउट द जीएस पेपर इन द मेंस। अब हम जीएस पेपर में देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड 4। पेपर 1 में आपसे क्वेश्चंस होंगे ऑन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये जो 3 ब्रैकेट्स हैं इनको ये कवर करेगा जीएस पेपर 1। टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 2, यहाँ पे आपको गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड इश्यूज। दिस इज जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 P3 is the technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management. And paper 4, ethics, integrity and aptitude. How to cover ethics, integrity and aptitude? I have also taken a session on that. You can also check out that session. That is a very very important and must session. क्योंकि ये भी जो पेपर है, people take it easy. See, basically these papers, if you see, these are very easy and almost everybody is going to write on the same things. But you can play with this paper. Ethics, integrity and aptitude, wherein which the case studies are given, है ना, and there are some theoretical questions as well, but the case studies implies and tells about your personalities. So यहाँ पे इस पेपर के साथ ये आपका एडवांटेज भी हो सकता है and you can score well in this paper. Now talking about the final stage, the personal interview. Mains हो गया यानी कि written examination हो गया. So when we talk about the personal interview, basically this is the final stage of IAS exam before the final results are declared. Officially it is called the interview या फिर इसको बोला जाता है personality test, and it is counted as the part of the mains examination as we discussed already. So अगर हम interview की बात करें, as I already told you, so यहाँ पे आपको मिलेंगे 275 marks, thus bringing the total marks as a 2025. So इंटरव्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही जो है बहुत ज्यादा मार्क्स जो है आपको वेरिंग मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा मिल जाते हैं। So again interview is again a very very important stage wherein which they check a candidate whether the candidate is ready for a career as a Indian administrative services or any kind of a services which are there and which are offered by the UPSC civil services examination. So आप एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए तैयार हैं या नहीं, वो आपको चेक करते हैं इंटरव्यू में। आपका नॉलेज तो ऑलरेडी उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर लिया है कि whether you can acquire that particular set of knowledge or not, बट यहाँ पे आपको who you are as a person and आप अपने नॉलेज को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। You have a bureaucratic quality in yourself or not, all these things are checked in the interview board. यहाँ पे आपके लिए बोर्ड होगा, there are varying number of people, panelist होते हैं, they ask you different type of questions, उसके लिए हम एक अलग सेशन कर सकते हैं how it is going to be, but yeah, the personal interview is going to be like that. So guys, आज के सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, eligibility conditions, qualifying marks, the stages in the examination, and there are so many things that I've discussed. अगर आप इस examination में नए आए हैं and if you just started preparing for the examination, these information are enough for you. आपके लिए जाने के लिए these information are enough. अगर आपको किसी भी कोर्सेज में ज्वाइन करना है, if you want to prepare for UPSC CSE 2021, so I highly recommend you can join the GS integrated courses specially designed for the candidate who are applying for 2021. You can also join the individual courses. JBs also have so many courses like
Super 50 program, GS main, guidance program, main mentorship program is also there. Download the app. JV's app is very, very important for your UPSC CSE preparations. This is going to give you a complete full-on analysis on the daily current affairs, updates, mind map. There are so many things which are important for your examination. So download the app right away. If you want to have some more information, you can always contact on this number. Thank you so much for listening. If you like this session, you can subscribe to this channel and hit the bell icon. इससे आपको सारे सेशन जो important सेशन हम यहाँ पर करते हैं उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. You can also connect us on the social media handles Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. So this is it for this session, guys. Thank you so much for listening. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.